Assalamu alaikum. This is Sadi Abdul Qadir, your maths teacher. Welcome to the math lesson for today. We are working with theorems these days. We are trying to prove some of the theorems and applying them in different situations. Last two lessons हमारे theorem के ऊपर हम कर चुके हैं. Today is going to be the third lesson on theorem. But there is a little change in today's lesson. Yes, I would call it a change because क्या हो रहा है, अभी आपने इस वीक में जो लेसन्स देखे होंगे उसमें वट एवर प्रॉब्लम यू फील इन द लेसन, इफ यू आर नॉट गेटिंग समथिंग, अगर आपको कुछ चीज़ समझने में प्रॉब्लम हो रही है या कोई भी कन्फ्यूजन है, सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन कॉल at 3539097 ये नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा. यू कैन कॉल अस एंड यू कैन आस्क द क्वेश्चंस राइट नाउ, राइट हियर, एंड इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू solve your problem. So your teachers are just a call away now, right? So let's start with today's lesson. It's on theorems. Yes, the learning outcomes are, by the end of the lesson you should be able to prove the following theorems and apply them to solve related problems. One of the theorems is the sum of the measures of the three angles of a triangle is 180 degrees. ये कॉन्सेप्ट आप बहुत जगह यूज़ कर रहे होते हैं. आई गेस क्लास 6-7 से आप लोग ये यूज़ करना शुरू कर देते हैं, दैट द सम ऑफ द एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज 180 डिग्रीज. लेकिन व्हाई इज दैट सो? दैट्स व्हाट यू आर गोइंग टू प्रूव टुडे इंशाल्लाह. द सेकंड वन इज if in a correspondence of two triangles, two angles and one side of a triangle are congruent to the corresponding two angles and one side of the other, the triangles are congruent. Correspondence क्या होती है? We have discussed it in the last lesson. आज दोबारा से थोड़ा सा रिव्यू कर लेंगे ताकि आपको याद आ जाए. And it says कि अगर दो एंगल्स और एक साइड एक ट्राइंगल की कॉन्ग्रेंट हैं, दो एंगल्स और एक साइड के दूसरे ट्राइंगल के, तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होते हैं. हाउ? दैट्स व्हाट वी विल प्रूव इंशाल्लाह. Okay, so let's get started with today's lesson. With the first theorem that we have is the sum of the measures of three angles of a triangle is 180 degree. As you all know, a triangle is a three-sided closed shape with three sides and three angles, three interior angles. तो वो जो three angles होते हैं triangle के, उनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है. नो मैटर वो ट्राइंगल की कौन सी टाइप है, नो मैटर हाउ डज अ ट्राइंगल लुक लाइक, बट उनके एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्रीज होता है. वी डिस्कस्ड के जब थ्योरम का प्रूफ स्टार्ट करते हैं तो थ्योरम्स के जो मेन एलिमेंट्स हैं, व्हाट आर दे? कम ऑन, रिकॉल. यस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट इज गिवन टू यू. सो it just says that sum of the measures of three angles of a triangle is 180 degrees. So what's given to us? Just a triangle. Do you agree? What's given? Just a triangle. उस triangle को मैंने यहाँ पे नाम दे दिया ABC. It can be any name, PQR, MNO, whatever. जो three vertices होते हैं उनका आप नेम करते हैं and then it gives you a name of a triangle. तो मैंने triangle का नाम ABC ले लिया है. Anything else given? अब ट्राइंगल गिवन है, डेफिनेटली इसमें तीन इंटीरियर एंगल्स हैं जो कि हम अभी प्रूव करेंगे कि उनका सम 180 डिग्री होता है. आफ्टर आइडेंटिफाइंग कि आपको क्या गिवन है, नेक्स्ट यू मूव ऑन टू द फिगर ऑफ दैट फिगर बेस्ड ऑन व्हाट इज गिवन टू यू. तो एक ट्राइंगल एबीसी गिवन है ना, सो वी टेक अ ट्राइंगल एबीसी. ठीक है. नाउ नेक्स्ट एलिमेंट, व्हाट इज इट? You need to once you know what's given to you, you need to identify what do you have to prove. आपको prove क्या करना है इस theorem में? What does the theorem say? What does the theorem ask us to prove? What does the statement say? ये तो statement है, एक element सबसे पहला तो statement ही होता है, and that's the statement of the theorem. इस statement से हम फिर extract करते जाते हैं जो हमें given होता है, prove करना होता है, and we have to prove that the sum of three angles is 180 degrees. What are the three angles? Angle A, the three angles are angle A, angle B and angle C, which you can also say angle BAC, angle ABC, angle ACB. ये तीन आपको ये प्रूफ करना है कि all these three angles in a triangle they sum up to 180 degrees. So what can we write?
क्या हम ये लिख सकते हैं कि मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल बी प्लस मेजर ऑफ एंगल वट एवर द मेजरमेंट्स आर, मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री? यही प्रूफ करना है ना हमें। अच्छा जी, अब हाउ टू स्टार्ट ऑफ विद द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम नाउ, कैसे स्टार्ट लें? हमें प्रूफ जब हम कर रहे होते हैं वी दैट इज डिवाइडेड इनटू टू सेगमेंट्स, देन स्टेटमेंट्स एंड रीजंस, पर उसके लिए हमारे पास कुछ ना कुछ गिवन डेटा ऐसा होता है जिसमें से हम फाइंड आउट करते हैं अच्छा वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम। अब यहाँ तो हमारे पास डायरेक्टली ट्राइंगल दे दिया है, वी डू नॉट नो कि हमें कब कहाँ कैसे कहाँ स्टार्ट करना है। इस किस्म की सिचुएशंस में sometimes we need to make some changes, we need to make some amendments, जिसको फिर जो अपनी खुद से हमने फिगर में जो थोड़ी बहुत चेंजेस की होती हैं, जिसको हम नाम देते हैं कंस्ट्रक्शन का। जो थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्शन हमने की होती है फिर उसकी बेसिस पर, और कंस्ट्रक्शन किस बेसिस पर होती है? कंस्ट्रक्शन उसी बेस पे होगी जो नॉलेज हमें है, ठीक है। Based on that knowledge, based on the facts, based on the postulates that we know, we make some construction. Sometimes it is needed, sometimes not. उस कंस्ट्रक्शन के जो हमें इस तरह से कंस्ट्रक्शन करते वक्त डेफिनेटली हमें बहुत ज़्यादा स्मार्टली करना होता है कि हम ऐसी क्या कंस्ट्रक्शन करें जो कि हमें हेल्प करेगी टू प्रूव वट एवर इज रिक्वायर्ड टू प्रूव। तो यहाँ पर सिंस हमारे पास गिवन डेटा इतना इनफ नहीं है, वी विल हैव टू मेक सम चेंजेस। तो हम क्या करेंगे कि इफ यू गो बैक टू द लास्ट लेसन, हमने लास्ट लेसन हमारा था, इट वाज ऑन पैरेलल लाइंस, रिमेंबर when two coplanar lines are in when there are two coplanar lines, another third line intersects them, when there are two coplanar lines and when the third line intersects them, ठीक है, तो कुछ alternate angles फॉर्म होते हैं। alternate angles क्या होते हैं? अब ये जो चारों there are different angles फॉर्म में 1 2 3 4 5 6 7 8 angles फॉर्म हो रहे हैं। अब जो the ones that are inside lying here, these angles are interior angles जो यहाँ लाई कर रहे होते हैं। अब इनमें the ones which share the opposite vertex, पहले ये आपने आइडेंटिफाई किया, ये दोनों एंगल्स और ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के ऑपोजिट वर्टेक्स हैं इनके। फिर ऑपोजिट साइड्स पर जो एंगल हैं, ऑपोजिट वर्टेक्सेस ये हैं, फिर ऑपोजिट साइड्स में एक ये वाला एंगल है, एक ये वाला एंगल है। ये दोनों एंगल्स ऑल्टरनेट एंगल्स होंगे। इसी तरह से ये दोनों एंगल्स ऑल्टरनेट एंगल्स होंगे और वो होते हैं कॉन्ग्रेंट, बराबर होते हैं। Why do I need to tell you about the alternate angles and the parallel lines here? Yes, because we are going to use it here. We are going to apply it here. Application of one theorem in another theorem. Interesting? Okay, so to make it useful, to make what is given to us useful, we are going to do some construction. Suppose मैं ऐसा कह दूं कि मैं यहाँ पर एक line draw कर दूं। What I'm going to do is I'm going to draw a line opposite to BC. ये जो BC that is one of the sides, इसके opposite में एक line draw कर रही हूँ और ये line आप देखें गौर से इस vertex को पास करते हुए जा रही है। That's point A. अगर मैं ये line consider कर लूँ, if I say that this line, let me sorry. Let me call this line, there are two angles here, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे एक एंगल यहाँ बन रहा है 1 और एक एंगल यहाँ बन रहा है 2। Let me call this line, let's say I call this line DE। तो मैं क्या कहूंगी कि DE is parallel to BC, क्योंकि मैंने कंस्ट्रक्ट ही इस तरह से की है ये लाइन कि ये लाइन इस BC के पैरेलल हो जाएगी। When DE is parallel to BC, I can take this as a transversal, ठीक है। ये लाइन और ये पैरेलल हैं तो ये ट्रांसवर्सल हो गया। कैन यू सी दी ऑल्टरनेट एंगल्स फॉर्म्ड हियर? अगर ये ट्रांसवर्सल है, ऑपोजिट वर्टेक्स हो गए, एक ऑन दिस साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, एक ऑन दिस साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, तो मेरे पास ये ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पे भी मेरे पास एक ये और एक ये ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं। इफ आई कंसिडर दीज टू पैरेलल लाइंस, दिस बी द ट्रांसवर्सल, 2 और C जो है वो ऑल्टरनेट एंगल्स होंगे। तो व्हाट डिड आई डू? कंस्ट्रक्शन मैंने क्या की है? देयर इज नथिंग डिफिकल्ट इन राइटिंग द कंस्ट्रक्शन। मैंने एक लाइन DE ड्रॉ की ऑपोजिट टू BC एंड विच इज पैरेलल टू BC एंड इट इज पासिंग थ्रू पॉइंट A।
और एडिशनल मैंने क्या किया, ये दो एंगल्स को मैंने नेम कर दिया एंगल 1 एंड एंगल 2. दैट्स व्हाट आई हैव हियर. क्या किया मैंने, थ्रू ए, as I said, it's passing through the point A, through A draw DE parallel to BC and name the angles angle 1 and angle 2, just like here. अब you can see कि आपको कुछ समझ आ रहा होगा कि alternate angles मैंने आपको क्यों बताए थे and how they are going to help us to prove that the three angles in a triangle, the interior angles they sum up to 180 degree. Alright, so we have here this figure जो कि अभी हमने जिसमें कंस्ट्रक्शन की थी, ये सब कुछ ऐसा ही था. Prove again, it consists of statements and reason. Whatever statement you're writing, you need to give a valid proof to that. You need to give a valid reason to that statement. Let's start off with what I've already told you कि ये angle, since DE and BC are parallel, angle 1 and angle B, they are alternate angles, and when what was the theorem that we did last time? When the two lines are parallel, the alternate angles which are formed, they are congruent. So can I write that angle 1 is congruent to angle B? Or I can say that measure of angle B is equal to whatever the measure of angle 1 is. If I am writing this, I will have to give the reason that the alternate angles are congruent. That's what I know. ठीक है? Same goes for this, just like we discussed now. कि angle 2 और angle C जो है, ये दोनों भी बराबर होंगे. क्यों बराबर होंगे? The same reason that they are alternate angles. Measure angle C is equals to measure angle 2, and the reason is that they are congruent. Ab, again, why do we need to make them, why did we need to have a parallel line here? इसकी भी एक वजह थी, और वजह ये है कि अब अगर आप इस पर गौर करें, इस लाइन पर, you have got three angles here, this angle which is BAC and this angle 2. ये तीनों जो angles हैं, as you can see, all these three angles, अगर मैं इनके आर्म्स को फिलहाल इग्नोर करूं, you may say कि all these three angles are lying on a straight line and they're sharing the common vertex, that's A. I hope you're getting it now. Angles on a straight line sharing the common vertex, which are adjacent angles, come on, what is that word? Supplementary angles. And what are adjacent supplementary angles? They sum up to 180 degrees. हमें भी कुछ 180 का figure चाहिए था. We needed to prove कि sum of three angles in a triangle is 180 degrees. Let's see how can we apply this concept into this triangle. अभी तक तो हमने ये प्रूव किया है कि measure angle B is equal to measure angle 1, measure angle C is equal to measure angle 2. Now, what we can do is, from 1 and 2, can I write that measure angle B plus measure angle C is equals to measure angle 1 plus measure angle 2, adding the two equations. So उसमें क्या होता है कि corresponding जो है वो sides add हो रही होती हैं, तो left hand side added measure angle B plus measure angle C होगा, equal to sign measure angle 1 plus measure angle 2 होगा, then only it will hold true. So that's what we have written from 1 and 2. Okay, now अब हमें ये भी पता चल गया कि B और C का जो सम है वो 1 और 2 के सम के इक्वल है. और क्या मालूम है हमें? And we can also see that measure angle BAC plus measure angle B plus measure angle C, that's what we have to prove. BAC is this angle जिसको आप अगर सिर्फ ट्राइंगल की टर्म्स में बात कर रहे होंगे तो आप इसको ये लिख रहे होंगे. So इसको आप यहाँ पे मेजर एंगल BAC इस वक्त इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर सिर्फ आप A लिखेंगे तो दिस कुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड, दिस कुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड, लेकिन मुझे ट्राइंगल के तीन एंगल्स की बात कर रही हूँ. तो कैन आई राइट दैट मेजर एंगल BAC प्लस मेजर एंगल B प्लस मेजर एंगल C इज एक्चुअली इक्वल टू मेजर एंगल BAC प्लस मेजर एंगल 1 प्लस मेजर एंगल 2.
क्यों? I can say that because I know that this is equal to measure angle 1, this is equal to measure angle 2. So I can replace these by 1 and 2, right? अब मैंने आपको बहुत सारे आइडियाज दे दिए कि कैसे प्रूव होगा. Still try to do it and I'll be back after a short break. Welcome back. Let's continue with the proof of the theorem. अभी हम बात कर रहे थे कि measure angle B plus measure angle C is equal to measure angle 1 plus measure angle 2. आपने इन दोनों से ऐड करके लिख दिया. Now अगर हम triangles के 3 angles की बात करते हैं तो measure angle BAC plus angle C plus angle B, we can also write it as angle BAC plus angle 1 plus angle 2. That would give you what? See, measure angle BAC plus measure angle 1 plus measure angle 2. So actually we are getting a situation like this. इस टाइप की एक सिचुएशन आपके पास आ रही है कि this is your angle 1, this is your angle BAC, this is your angle 2, and what is this sum equal to? Come on. अच्छा जी, ये step even if you don't write it, I'll tell you why. Reasons भी आप देखते जा रहे हैं ना. हमने यहाँ क्या किया है इस इक्वेशन में. एक्चुअली if you consider this whole equation, तो हमने यहाँ दोनों साइड्स पे मेजर एंगल BAC को ऐड किया हुआ है. ठीक है. इफ यू ऐड मेजर एंगल BAC हियर इट विल गिव यू मेजर एंगल BAC प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू मेजर एंगल BAC प्लस मेजर एंगल 1 प्लस मेजर एंगल 2. तो ये पूरा जो है ना, दिस इज वन इक्वेशन. ओके, राइट. तो अब यहाँ पर जो है BAC प्लस मेजर एंगल 1 अगर मैं कंसिडर करूँ, BAC प्लस मेजर एंगल 1, व्हाट इज दिस एंगल? एंगल CAD. And then you will get angle CAD plus angle 2, right? So अब क्या किया यहाँ पे? You consider this and this, and of course adjacent supplementary angles, and the sum must be equal to 180 degrees. Okay? तो if you again go back, हमने क्या किया था कि अगर इन तीनों का सम 180 डिग्री हो रहा है, जिसमें एंगल 1 is actually congruent to angle B and angle 2 is actually congruent to angle C, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों का सम इवेंचुअली हमें क्या मिला कि इन तीनों एंगल्स का सम जो है 180 के इक्वल आ गया. एंड दैट्स व्हाट वी हैड टू प्रूव. अब समझ आया कि हमने एक पैरेलल लाइन ऊपर क्यों ली थी? क्योंकि वी नो कि ये जो 3 एंगल्स हैं यहाँ पर, इन तीनों एंगल्स का सम जो है आपके पास वो 180 डिग्री आ रहा था, और आपने ऑल्टरनेट एंगल्स को यूज करते हुए ये प्रूव्ड इट. राइट? क्लियर? I think I made myself clear. Okay, so this was about this theorem which has been proved. Now let's move on to the next one. Okay, the next one is, if in a correspondence of two triangles, two angles in one side of a triangle are congruent to the corresponding two angles when on one side of the other, the triangles are congruent. कॉरेस्पॉन्डेंस की हमने लास्ट टाइम बात की थी. सबसे पहले अभी कॉरेस्पॉन्डेंस में मैं बताऊंगी आपको कि क्या है. यू नीड टू आइडेंटिफाई हियर कि गिवन क्या है. इट्स अ प्रीटी लॉन्ग स्टेटमेंट. आइडेंटिफाई करें गिवन क्या है, प्रूफ क्या करना है. देखिए फिर से पढ़ते हैं. इफ द इन अ कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स, पहली चीज दो ट्राइंगल्स का कॉरेस्पॉन्डेंस लिया गया है. मैंने ट्राइंगल्स को नेम कर दिया triangle BAC and triangle DEF. This is the sign for correspondence, you all know that. दो triangles का correspondence लिया गया है. What else it says? Two angles on one side of a triangle are congruent to the corresponding two angles on one side of the other. Corresponding two sides and two angles on one side of the other. इसके लिए it won't be clear if you will not have the diagram in front of you. Let's have a figure. क्या है यहाँ पर? Two triangles ABC and triangle DEF. अब अगेन जब हम correspondence ले रहे हैं ट्राइंगल का, as I said earlier, order is very very important.
अगर आप ए बी सी का कॉरेस्पॉन्डेंस डी ई एफ के साथ ले रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ एंगल ए इज गोइंग टू बी कंपेयर्ड विद एंगल डी, एंगल बी इज गोइंग टू बी कंपेयर्ड विद एंगल ई, एंड एंगल सी इज गोइंग टू बी कंपेयर्ड विद एंगल एफ. हमें क्या गिवन है कि टू एंगल्स इन वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट. तो अगर हम इन दोनों इनमें से तीन एंगल्स में से इफ आई से लेट्स से कि ये जो एंगल है आपके पास एंगल बी, मैंने ये कह दिया कि एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई, और मैंने कह दिया एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एफ, जो कि यहां से प्रूव भी हो रहा है कि सी का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एफ होगा. इट सेज कॉन्ग्रुएंट टू द कॉरेस्पॉन्डिंग टू एंगल्स एंड वन साइड ऑफ द अदर. तो एंगल बी का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल ई, एंगल सी का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल एफ. तो अगर ये दो एंगल्स और एक साइड भी कॉन्ग्रुएंट हमें दिया हुआ है, तो हमने क्या कह दिया कि बी सी दिस साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू ई एफ. ये दिस इज व्हाट विच इज गिवन टू अस. टू एंगल्स इन वन साइड ऑफ वन ट्राइंगल इज इक्वल टू द कॉरेस्पॉन्डिंग टू एंगल्स इन वन साइड ऑफ द अदर ट्राइंगल, देन द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. तो मतलब प्रूफ क्या करना है, दैट ट्राइंगल ABC is congruent to triangle DEF. That's what we have here. All right. अब again, अगर triangles congruent हैं, इसका मतलब ये हो कि all three sides of one triangle are congruent to all three corresponding sides of the other triangle. All three angles of one triangle are congruent to the corresponding all three angles of the other triangle. यानी कि इसके तीनों एंगल्स इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है. इसके तीनों साइड इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के कॉन्ग्रुएंट हैं. दैट्स व्हाट वी हैव टू प्रूव. वी नो वन ऑफ द पोस्टुलेट्स इन कॉरेस्पॉन्डेंस, हमने यूज भी किया है. रिमेंबर दैट. साइड एंगल साइड पोस्टुलेट विच इज वेरी कॉमनली नोन एज SAS पोस्टुलेट. अब साइड एंगल साइड पोस्टुलेट के लिए अगर हम दो ट्राइंगल्स का कॉरेस्पॉन्डेंस ले रहे हैं, तो उसमें कोई दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए. दूसरे ट्राइंगल की दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल के तब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं. बट व्हाट वी कैन सी हियर इज कि एक साइड आपको कॉन्ग्रुएंट दी हुई है और दो एंगल्स दिए हुए हैं. वी कैन प्रूव कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं. बट ओके, वी हैव अ कॉलर. अस्सलाम वालेकुम. हेलो. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. हेलो. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. हेलो. 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 अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. मैम, ये I think we are not able to connect with the caller. Let's continue with the lesson. All right. Triangle ABC in correspondence with triangle DEF. अच्छा, मैं ये कह रही थी कि SAS पोस्टुलेट हम यूज कर सकते हैं अगर हमारे पास कॉरेस्पॉन्डेंस में दो साइड्स हम कॉन्ग्रुएंट ले लें और एक एंगल कॉन्ग्रुएंट ले लें, तो हम ये चीज यूज कर सकते हैं. सो लेट्स से कि आपके पास एक हम कंस्ट्रक्शन करते हैं. यहाँ पे हमने अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होगी. AB और DE भी कॉन्ग्रुएंट होंगे. ठीक है. SAS पोस्टुलेट्स के लिए हमें दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल चाहिए. हमें मालूम है कि BC और EF कॉन्ग्रुएंट है. हमें मालूम है कि एंगल B और एंगल E कॉन्ग्रुएंट है. इफ वी जस्ट सपोज उसके हिसाब से ये वाली एक साइड होनी चाहिए कॉन्ग्रुएंट. सो लेट्स गो द अदर वे अराउंड. हम ये सपोज कर लेते हैं कि AB और DE कॉन्ग्रुएंट नहीं है. ठीक है. दैट्स व्हाट वी हैव हियर. लेट्स सपोज कि AB और DE कॉन्ग्रुएंट नहीं है. दैट इज, अब जब AB और DE कॉन्ग्रुएंट नहीं है तो हम अपनी तरफ से एक सपोजिशन, एक कंस्ट्रक्शन ये करते हैं कि लेट्स टेक अ पॉइंट D डैश ओवर हियर. ठीक है. मैं अगर एक पॉइंट D डैश यहां ले लूं और मैं ये कह दूं कि इट्स माय ओन कंस्ट्रक्शन. ओके, अब मुझे एक चीज प्रूफ करनी है तो उसके लिए मैं दूसरा तरीका इस्तेमाल कर रही हूं कि मैं दूसरी तरफ से चल रही हूं कि लेट्स से दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट. तो अगर मैं ये कह दूं कि देयर इज अ पॉइंट D डैश विच इज लाइंग ऑन DE, तो इन सच अ केस I am assuming कि AB और DE की जगह AB और D डैश E कॉन्ग्रुएंट है. मैंने क्या किया, I am assuming कि let me do it. I am assuming कि एक पॉइंट मेरे पास D डैश है जो कि लाई कर रहा है
DE पर, and this point is actually giving me DE congruent to okay, right, and this point actually give me D dash E congruent to AB. Okay, if I have D dash E congruent to AB, that's what I have here. I will use this now in my correspondence. What I have done is I have joined F to D dash, ताकि मेरे पास एक नया एंगल भी आ गया है, क्योंकि अब मेरे पास एक नया ट्राइंगल भी आ गया है. यू कैन सी D dash F E या correspondence जब हम लेंगे, we'll have to be very careful in the order that we take. So what I have here is, that's what we did. मेरे पास एक ट्राइंगल ABC था, उसको मैंने ऐसे ही रहने दिया. यहाँ पे मैंने अज्यूम किया AB is not congruent to DE. I took a point D dash on DE. मैंने D dash को F से ज्वाइन कर दिया और मैंने ये अज्यूम किया था कि AB is actually congruent to D dash E. ठीक है, this was my supposition. Let's start with the proof. अब मैंने कहा था आपके पास एक नया ट्राइंगल आ गया. I am going to take the correspondence of ABC order ABC and D dash E F. ठीक है, now AB is congruent to D dash E. ये हमारी कंस्ट्रक्शन थी जो कि हमने सपोज किया था, अपनी तरफ से एक पॉइंट D dash ले लिया था. उसके बाद then BC is congruent to EF. It's given to us, we know that. अभी हमने देखा था, हमारे पास given था कि ये दोनों congruent हैं. और क्या हमारे पास given है इसमें? Come on, now you identify. कौन से एंगल्स congruent है? Was it given to us? Yes, it was. Angle B is congruent to angle E. This was also given. देखिए क्या अप्लाई हुआ है. Two sides and the included angle. Two sides and the included angle of one triangle is congruent to two sides. साइड यहाँ से स्टार्ट हो रही है. Two sides and the included angle of the other triangle. SAS postulate. That is, this triangle ABC is congruent to this triangle D dash EF. प्रूव हो गया. अब देखें, अब ये जो दो ट्राइंगल्स प्रूव हो गए ABC और D dash EF, इसका मतलब ये हुआ कि all three sides of these triangles are congruent to the corresponding sides of the other. All three angles of this triangle are congruent to the corresponding angles of the other. How can we use it now? अच्छा जी, अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं तो ये जो एंगल C है ये एंगल D dash F E के कॉन्ग्रेंट होगा, है ना? एंगल C जो है एंगल D dash F E के कॉन्ग्रेंट होगा. लेकिन अगर आपको याद हो कि हमें क्या गिवन था, एंगल C इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल F. रिमेंबर दैट. Here I'll call it a DFE. क्यों? क्योंकि अगर मैं सिर्फ एंगल F की बात करती हूँ तो you might think of it as D dash FE. हमें ये गिवन था कि एंगल C एंगल DFE के कॉन्ग्रेंट है. तो एंगल C जो है वो तो एक तरह से दो एंगल्स के तो कॉन्ग्रेंट नहीं है कि ट्राइंगल में. देन क्या हमारी सपोजिशन ठीक थी या हम इससे क्या रिजल्ट डिड्यूस करते हैं? थिंक अबाउट इट. आई एम गोइंग टू बी बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक. Welcome back. Let's continue with the proof of the second theorem for today. We were discussing कि हमने दो triangles को prove कर दिया, correspondence लिया, SAS postulate apply किया, we have proved that triangle ABC is congruent to triangle D dash EF. Okay, but उसके बाद अगर triangles congruent हैं तो corresponding sides और angles भी congruent होंगे. तो we can say angle C is congruent to angle D dash FE. But what's given to us is angle C is congruent to angle DFE. अब अगर ये पॉइंट्स डिफरेंट होते D डैश और D तो डेफिनेटली एंगल चेंज होता है. क्यों? साइड्स अगर एंगल डिपेंड करता है पॉइंट की मूवमेंट्स पे. यहाँ पे अगर ये पॉइंट ऊपर चला जाए एंगल बढ़ गया, पॉइंट नीचे आ जाए एंगल कम हो गया. लेकिन ओवर हियर वी कैन सी एंगल C ही कॉन्ग्रेंट है इन दोनों के. और व्हाट चेंज वी सी हियर इज D डैश एंड D. इसका मतलब ये हुआ कि D डैश और D जो है वो एग्जैक्टली एक ही पॉइंट है. अगर ये डिफरेंट होते तो एंगल चेंज होता. दोनों एंगल C के कॉन्ग्रेंट है, इसका मतलब दे हैव टू बी द सेम पॉइंट्स.
So we can write angle D dash FE as congruent to angle DFE. This is what I discussed. This is possible only if D and D dash are the same points, otherwise not, because एक ही ट्राइंगल मिलाए कर रहे हैं. अगर आप ये वाला करें तो F सेम ही है, तो D dash and F, D dash and D have to be the same points for these angles to be congruent. That means के AB जो है वो congruent है DEA के. क्यों? क्योंकि D dash और D same points हैं. Alright, so we have a caller again. Hello. Hello. वालेकुम अस्सलाम. ये मैं अकील बात कर रहा हूँ कराची से. जी अकील. मुझे कॉरेस्पॉन्डेंस का कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ी मुश्किल होती है हमेशा. जब भी क्लास में टीचर भी एक्सप्लेन करते हैं तो कॉरेस्पॉन्डेंस का कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ी सी मुश्किल होती है. तो अगर आप प्लीज जो आपने गिवन में दोनों की कॉरेस्पॉन्डेंस दिखाई है, अगर उसको थोड़ा बेहतर तरीके से मुझे दोबारा समझा दे तो मुझे क्लियर हो जाएगा. ओके ओके अकील, कीप वॉचिंग द लेसन. मैं आपका जवाब ऑन एयर देती हूँ आपको. सो stay with me. I'm just going to answer you in this lesson only. Right, thank you for calling anyways. जी, तो अकील ने कॉल की थी हमें कराची से, and he was asking कि उनको कॉरेस्पॉन्डेंस का कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है. Yes अकील, I'm going to solve your problem right now. ये जरा सा मैं कंप्लीट कर लूँ because it's just at the end, and then I'm going to repeat that concept. All right. अच्छा जी, दिस इज आई वाज सेइंग कि अगर एंगल डी एफ ई और डी डैश एफ ई कॉन्ग्रेंट है तो ये उसी वक्त पॉसिबल होगा जब डी और डी डैश सेम पॉइंट्स हैं. और अगर डी और डी डैश सेम पॉइंट्स हैं तो क्योंकि मैंने ए बी और डी डैश ही कॉन्ग्रेंट लिया था, आई कैन ऑल्सो से दैट ए बी एंड डी ई आर कॉन्ग्रेंट. ठीक है ना, क्योंकि डी डैश और डी सेम पॉइंट्स, आई कैन राइट ए बी इज कॉन्ग्रेंट टू डी ई. नाउ लुक एट व्हाट डिड वी हैव. अगर हम ट्राइंगल ए बी सी और डी एफ ई की बात करते हैं, लेट्स सी व्हाट डू आई हैव. बी सी कॉन्ग्रेंट टू ई एफ, राइट. एंगल बी कॉन्ग्रेंट टू एंगल ई एंड ए बी कॉन्ग्रेंट टू डी ई. Now look at this. Two sides of a triangle congruent to the corresponding two sides of the other triangle. One angle of one triangle congruent to the corresponding angle of the other triangle. Two sides and the included angle congruent to two sides and included angle corresponding two sides and included angle of the other triangle. In this case, कौन सा postulate है? Two sides and an angle. Come on. ऐसे as postulate. अगर मैं ये देखूँ from 2, 3 and 4 मैंने यहाँ लिखा हुआ है 2 is this, 3 is this and 4 is this, जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन भी किया. ऐसे एज पोस्टुलेट अप्लाई हो रहा है एंड ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ, राइट. दैट्स व्हाट विच इज प्रूव. यही तो हमें प्रूव करना था कि ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एफ कॉन्ग्रुएंट है. ओके, सो दैट्स डन हियर. गेटिंग बैक टू व्हाट अकील वाज आस्किंग. अच्छा चलेंगे वही गिवन से बता देती हूँ ताकि उनको क्लियर हो जाए एंड फॉर द रेस्ट ऑफ यू ऑल्सो. हमारे पास दो ट्राइंगल्स है, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एफ. अब जब हम कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ ट्राइंगल की बात कर रहे होते हैं, इफ आई एम टेकिंग द कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स, अगर मैं आपको इससे थोड़े से डिफरेंट सिचुएशन बताऊँ, माइट बी मोर क्लियर. ट्राइंगल ए बी सी इन कॉरेस्पॉन्डेंस विद ट्राइंगल मे बी एफ ई डी. ट्राइंगल ए बी सी इन कॉरेस्पॉन्डेंस विद ट्राइंगल एफ ई डी. अब देखिए मैंने क्या कहा था कि जब हम कॉरेस्पॉन्डेंस ले रहे होते हैं, अगर मैंने ए बी सी इन कॉरेस्पॉन्डेंस विद ट्राइंगल डी ई एफ लिखा है, आई एम गोइंग टू कंपेयर एंगल ए ऑफ दिस ट्राइंगल विद एंगल डी ऑफ दिस ट्राइंगल. जब भी मैं कोई भी पोस्टुलेट अप्लाई करूंगी, जब भी मैं कॉरेस्पॉन्डेंस लूंगी, तो मैं इन ही दोनों ट्राइंगल का कंपेयर करूंगी आपस में. आई विल हैव टू, अगर मुझे पोस्टुलेट अप्लाई करना, आई विल हैव टू नो कि ये एंगल ए और एंगल डी कॉन्ग्रुएंट है. क्यों? बिकॉज ऑफ दिस ऑर्डर ऑफ द कॉरेस्पॉन्डेंस. बट इफ आई लुक एट दिस वन, triangle ABC in correspondence with triangle FED. Now, what we'll have to do in this case, अगर मैं ये देखूं कि angle A is going to be compared with angle F now. Is it making sense? Angle A का जो correspondence है अब in this case,
is going to be with angle F. तो क्या कहूंगी मैं? The correct terminology that I'm going to use is that F is the corresponding angle of angle A. In this case, D is the corresponding angle of angle A. In this case, F is the corresponding angle of angle A. For B, what's the corresponding angle? Come on. Yes, I hope it's clear that for angle B, अब corresponding angle क्या हो गया? Angle E. Now for angle C, कौन सा corresponding angle होगा? D. ठीक है? Are you getting it? Angles की हमने इस तरह से बात की. बिल्कुल इसी तरह से if I talk about sides now, तो in this case AB की corresponding side है DE. But in this case AB की corresponding side है FE. ठीक है? डिफरेंस नजर आ रहा है कॉरेस्पॉन्डेंस से. इन दिस केस ए बी की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड होगी डीई बिकॉज ऑफ द ऑर्डर. इन दिस केस ए बी की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड होगी एफ ई अगेन बिकॉज ऑफ द ऑर्डर. सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल. वो क्या करते हैं बच्चे के याद कर लेते हैं थ्योरम्स और फिर कहते हैं दो ट्राइंगल्स ही तो कॉरेस्पॉन्डिंग करने हैं, दोनों में ए बी सी और डी ई एफ तो है, और ये नहीं सोचते कि ऑर्डर से चेंज आ जाता है. अगर आप इन दिस केस अगर आपने गलती से डी ई एफ की जगह एफ ई डी लिख दिया एंड यू आर अगेन सेइंग कि एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी, या अगर आप एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी कह रहे हैं लेकिन आपने लिखा एफ ई डी है, तो वो तो गलत हो गया ना, क्योंकि ए का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल तो एफ है, डी तो नहीं है. गेटिंग इट? सो दिस वाज अबाउट कॉरेस्पॉन्डेंस. आई होप दैट आई वाज एबल टू आंसर योर क्वेश्चन इफेक्टिवली. Right. In case of any other confusions, you can call, you can SMS, you can email. There are a lot of options for you people now. Right. So these were the theorems. Now we are going to move on to the application of theorems. अब जो हमने theorems proof किए हैं, how can we apply them to the situation? Theorem proof तो कर लिया, application भी तो आनी चाहिए ना. If we have a triangle which is given to us, and I need to find out the value of z in this given figure, which is a triangle. I need to find the value of z, the three angles of a triangle. So theorem apply हो रहा है यहाँ पे? Yes. So what do they sum up to? We know that the three angles of a triangle, they sum up to 180 degrees. So to find out z, if out of three, two of them are known to us, one of them is unknown, I can find it out. Yes, you can also do that. Can I write 42 degrees plus 108 degrees plus z is equal to 180 degrees? Can I do that? Of course I can do that, क्योंकि मुझे मालूम है कि all these three angles will sum up to 180 degrees. तो अब मैं next क्या करूँगी? Only z is unknown in this equation. Yes, you can do that. It would be okay, 150. So what is z equal to? Z is equal to, yes, 180 minus 150. So z is equal to 30 degrees. आप समझ में आया कि आप लोग जो एप्लीकेशन कर रहे होते हैं यहाँ के किस सम ऑफ द एंगल्स एंड ट्राइंगल इज 180 डिग्री, एक्चुअली हमने इसको प्रूफ भी करके देखा और फिर अप्लाई किया, तो शायद आपको ज्यादा क्लियर हुआ होगा मे बी. ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट एग्जांपल. Find the value of z in the given figure. Again, we have to find the value of z in the given figure. But in this case, you'll have to identify which are the three interior angles of a triangle. Maybe if it is not clear. Okay, right. So in this case, this is one of the angles. Z is the second angle. Third angle भी तो नहीं मालूम, और आपको तो ये मालूम है कि all three angles of a triangle they sum up to 180 degree. तो उसके लिए एक मालूम करने के लिए एटलीस्ट दो तो नोन होने चाहिए. ये तो आपको नोन नहीं है अगर आप सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल का थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ तो. बट इफ लुक एट दिस, ये आपके पास ये एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल गिवन है. यू कैन ऑल्सो सी कि ये एंगल दे आर लाइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, दे आर एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल, दे एड अप टू 180 डिग्रीज. सो इफ वन ऑफ देम इज 130 डिग्रीज, डायरेक्टली आप कह सकते हैं द अदर वुड बी 50 डिग्रीज. Now you know two angles of a triangle, 50 at 50. What is remaining? I'm not going to do the whole working here because you can do it now. 100. So the third one must be 80 degrees to make the sum equal to 180 degrees. Now, next. Okay, so we have a collar.
अस्सलाम वालेकुम. रोजाना 4 Sorry, it's not clear. Can you repeat your question? हेलो Hello. हेलो, जी. ये मैंने कॉरस्पॉन्डिंग और कंग्रुएंट में डिफरेंशिएट पता करना है कि क्या डिफरेंस है इसमें. रनी बोल रहा हूँ. प्लीज आप लाउड थोड़ा बोलें. कॉरस्पॉन्डिंग और कंग्रुएंट में डिफरेंस. कांग्रेंट कॉरेस्पॉन्डिंग और कांग्रेंट में जी क्या डिफरेंस क्या है, फर्क क्या है? अच्छा, कॉरेस्पॉन्डिंग और कॉन्ग्रेंसी में क्या डिफरेंस है, ये आप पूछ रहे हैं? ये सर. ठीक है. आप प्लीज ऑन एयर में आपको जवाब दे रही हूँ. कीप वॉचिंग एंड यू विल गेट टू नो योर आंसर. ठीक है. थैंक यू फॉर कॉलिंग. बट हु इज कॉलिंग? कौन बात कर रहे हैं? मैं गनी बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से. इस्लामाबाद से. सॉरी, गनी फ्रॉम इस्लामाबाद. ठीक है गनी, मैं आपका जवाब अभी दे रही हूँ. प्लीज आप देखते रहिए प्रोग्राम. गनी का क्वेश्चन ये था कि कॉरेस्पॉन्डेंस और कॉन्ग्रेंसी में क्या फर्क है. When we talking about congruency of two sides or angles or triangle, इसका मतलब ये हुआ कि वो बराबर हैं. अगर दो साइड्स कॉन्ग्रेंट की बात कर रही हूँ तो दो साइड्स बराबर हैं. दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट की बात कर रही हूँ, ट्राइंगल्स बराबर हैं. कॉरेस्पॉन्डेंस की अगर बात कर रही हूँ दो ट्राइंगल्स की, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम एक्चुअली देखते हैं कि एक ट्राइंगल के एक एंगल किस एंगल के कॉन्ग्रेंट होना चाहिए अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगे. कंपैरिजन कर रहे हैं अगर हम दो ट्राइंगल्स की, तो कॉन्ग्रेंसी का मतलब तो ये हो गया कि दोनों ट्राइंगल बराबर हैं. लेकिन अगर कॉरेस्पॉन्डेंस की बात हो रही है, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल डी ई एफ, तो ए बी सी और डी ई एफ में अगर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है तो ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगे. कॉरेस्पॉन्डेंस में हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कौन से कॉन्ग्रेंट होने चाहिए, कंपैरिजन करेंगे. और कॉन्ग्रेंसी का तो मतलब है ही दोनों बराबर. ठीक है. लेट्स गेट बैक टू दिस क्विकली. एक तो तरीका, ठीक है. आई होप आई वाज क्लियर. गेटिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, हमने ये देखा कि हमने ये वाला एंगल फाइंड किया, दोनों को ऐड करके 180 से सब्ट्रैक्ट किया, z आ गया. अनदर वे ऑफ डूइंग इट, दिस इज द एक्सटीरियर एंगल, दीज आर टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स. रिमेंबर हमने लास्ट टाइम क्या किया था, हमने ये देखा था कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स. तो आई कैन राइट इट. अब देखें यहाँ पे मैं ट्राइंगल के सम, जो एंगल सम की बात हो रही थी, इसके अलावा दूसरी चीज भी अप्लाई हो सकती है. सो डोंट स्टिक टू दिस कि अगर ये वाले थ्योरम किया है तो सिर्फ यही अप्लाई हो सकता है. नहीं, यू कैन ऑल्सो डू इट इन दिस वे. सो यू विल गेट इन दिस वे ऑल्सो z इक्वल टू 80 डिग्रीज. ठीक है. और अगर ट्राइंगल सम, एंगल सम ऑफ अ ट्राइंगल की बात करते हैं तो भी आपके पास यही आता है. दैट वॉज ऑल फॉर टुडे. आई हैव एन असाइनमेंट फॉर यू, दैट इज जो कि एग्जाम्पल 3 है. अगर दो ट्राइंगल्स पी क्यू आर और एम एन ओ कॉन्ग्रेंट हैं तो आपको ये फाइंड करना है पहले तो आप ये देखें ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं. कॉरेस्पॉन्डेंस वाला, अब मैं होप गनी के लिए भी क्लियर होगा. अब यहाँ पे आप कॉरेस्पॉन्डेंस वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करके देखेंगे कि एम एन जो है इस ट्राइंगल में किस साइड के कॉन्ग्रेंट होगी. उसके लिए आपको कॉरेस्पॉन्डेंस देखना पड़ेगा. एंड सेम गोज फॉर एंगल एन. Alright, so that's all for today. Let's go to the MCQs for the day. In the given figure, the value of x is, alright, two angles are given, one is unknown. Option A 35 degrees, option B 65 degrees, option C 150 degrees, and option D 145 degrees. Okay, next one. The measure angle 1 in the given figure is equal to option A 50 degrees, option B 80 degrees, option C 100 degrees, and option D 130 degrees. In the following figure, triangle ABD is congruent to triangle CDB. The corresponding angle of angle ADB is option A angle ADB, option B angle ABC, option C angle CBD, and option D angle BDC. Okay, if you have any confusion कि अगर आपको थोड़ा सा जल्दी में क्लियर ना हुआ हो, go to our website www.learningsupport.akueb.edu.pk. ठीक है. एड्रेस आपके पास आ गया होगा स्लाइड पर, एंड यू कैन सेंड अस द आंसर 6969, और आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं आंसर्स. ओके, तो इजाज़त दीजिए. नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आई विल सी यू विद मोर थ्योरम्स. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.